السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی سے گھر واپسی کے فوراً بعد ہی اہم سیاسی شخصیات ان کے گھر پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد ہوئی۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ مولانا فضل الرحمان کو حکومتی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ملاقات میں JUI کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں، مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچتے ہی اہم سیاسی شخصیات کی ان کے گھر آمد ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد ہوئی۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ مولانا فضل الرحمان کو حکومتی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ملاقات میں JUI کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اہلیہ کو ملنے والے تحفوں کی معلومات ظاہر نہ کرنے پر مشکل میں پڑ گئے۔ برطانوی اداروں نے وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ لیبر پارٹی کو عطیات دینے والے کاروباری شخصیت وحید علی نے کیئر سٹارمر کی اہلیہ کو شاپنگ کے پیسے ادا کیے۔ ان کے کپڑوں میں جو تبدیلیاں کرانا تھیں اس کا بھی خرچہ وحید علی نے اٹھایا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اہلیہ کو ملنے والے تحائف ظاہر نہ کر کے پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کیئر سٹارمر نے وحید علی سے کئی مرتبہ عطیات لیے، جن میں اینک، کام پر جانے والے کپڑے اور رہائش بھی شامل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے خود کو ملنے والے عطیات تو ظاہر کیے، مگر اہلیہ کو ملنے والے تحائف انہوں نے ظاہر نہیں کیے، جس پر انہیں تحقیقات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیں، واجد علی نے کیئر سٹارمر کو بھی تحائف دیے۔ اپوزیشن کا مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہلیہ کو ملنے والے تحائف ظاہر نہ کرنے پر برطانوی وزیر اعظم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ لیبر پارٹی کو عطیات دینے والے کاروباری شخصیت وحید علی نے کیئر سٹارمر کی اہلیہ کو شاپنگ کے پیسے ادا کیے۔ ان کے کپڑوں میں جو تبدیلیاں کرانی تھی اس کا بھی خرچہ وحید علی نے اٹھایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، خورشید شاہ کی سربراہی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی بھی اجلاس میں شرکت۔ مولانا نے کہا، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا کی بل پر مزید مشاورت کی تجویز۔ PTI کا جلد بازی میں قانون سازی نہ کرنے کا مشورہ۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا، نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ، منصور آوان، اسحاق ڈار، ایمل ولی خان، سینیٹر صادق سنجرانی، شیری رحمان کی شرکت۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، علی ظفر، شبلی فراز اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت دیگر ارکان بھی شریک۔ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم پر غور۔ اٹارنی جنرل کی شرکاء کو مسودے پر بریفنگ۔ کمیٹی اجلاس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے، اس کمیٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔ بیرسٹر گوہر علی نے کہا، ہمارا مطالبہ تھا کہ ورکنگ پیپر دکھائیں، ہمارا کسی چیز پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ شبلی فراز نے کہا، حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی، نہ ان کے پاس نمبر تھے، آخری منٹ تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ ہم سے شیئر کرتے۔ عمر ایوب نے کہا، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو ڈکٹیشن کہیں اور سے آ رہی ہے، حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی، نہ ان کے پاس نمبر تھے۔ جبکہ عمر ایوب نے کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو ڈکٹیشن کہیں اور سے آ رہی ہے، خصوصی کمیٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ تھا، ورکنگ پیپر دکھائیں، ہمارا کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کافی اتفاق رائے ہوا ہے، مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان کافی چیزوں پر راضی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ یہ ترمیم بھی 18ویں ترمیم کی طرح متفقہ ہو۔ کافی اتفاق رائے ہوا ہے، مزید ضرورت ہے۔ یہاں تک میرے خیال میں کافی چیزیں پہ راضی ہے۔ مولانا صاحب کا کوشش یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی طرح یہ بھی ایک یونانیمس آئینی ترمیم ہو۔ مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔
सारे दिन की हंगामा आराई के बाद कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी हो गया। सेनेट का इजलास हो ही ना सका, वफाकी काबीना का इजलास भी ना हुआ। इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर रात 7 बजे और फिर रात 11 बजे का ऐलान किया गया। सेनेट का इजलास भी मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। सेनेट इजलास 4 बजे बुलाया गया, बार बार वक्त बदलता रहा, फिर इजलास हो ही ना सका। मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 12:30 बजे होगा। इससे पहले विफाकी काबीना का इजलास होगा। मुजवजा आईनी तरमीम को विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास का आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ताहम आईनी तरमीम से मुतल्लिक कोई आइटम एजेंडे में शामिल नहीं है। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सेनेट इजलास के एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान से क्या बातचीत हुई मालूम नहीं। आज सुबह पता चलेगा कि नंबर पूरे हैं या नहीं। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती नंबर पूरे होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत के नंबर पूरे हैं और आईनी तरमीम पेश होगी। लगता तो इसीलिए इसी तरह फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? कुछ मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे इसलिए आज ठीक। हुकूमत ने मुजवजा आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं दिया। जेजुआई रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हुकूमत से कहा था जब तक मुसविदा पढ़े नहीं वोट कैसे देंगे। हुकूमत से कहा है आईनी तरमीम लाने में जल्दबाजी ना करें। हमने तजवीज़ दी कि आईनी तरमीम को मुअख्खर करें ताकि मुशावरत हो सके। आईनी मुसविदे पर जेजुआई ने मुख्तलिफ पार्टियों से मुशावरत की। इजलास में मौकिफ रखेंगे कि तरमीम से मुतल्लिक इतनी जल्दी क्यों थी। कर दिया हुकूमत की नाकामी समझे हम। हुकूमत तो हर सदर से नाकाम है सर। हमने जिस मुसवदे की डिमांड की वो अभी तक हमें नहीं मिला। अख्तर मेंगल कहते हैं, ऐसा मुल्क में होने क्या जा रहा है जो इतनी जल्दी है? क्या कोई दुश्मन मुल्क हम पर हमला कर रहा है? हमने जिस मुसवदे की डिमांड की थी हमें वो अभी तक नहीं मिला। अख्तर मेंगल का कहना है कि हमने जिस मुसवदे की डिमांड की थी वो नहीं मिला। ऐसा मुल्क में क्या होने जा रहा है जो इतनी जल्दी है? क्या कोई दुश्मन मुल्क हम पर हमला कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन जमातों के साथ एक एक शिक पर मुशावरत कर रहे हैं। आईनी तरमीम संजीदा मामला है, इसमें ताखीर हो सकती है। हर पाकिस्तानी की जिंदगी आसान बनाने के लिए आइन में तरमीम की जा रही है। अवाम के मुफाद में ऐसी कानून साजी की जाए जिससे उन्हें फायदा पहुंचे। कोशिश है कि मामले पर आज ही कोई पेशरफ्त हो जाए। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद तमाम शिकें आपके सामने लाई जाएंगी। ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का, तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पर जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। तो जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है। तो जब तक ये वसी मुशावरत का इदारा जो है वो मुकम्मल नहीं कर लिया जाता और हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है, मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है। सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 25 करोड़ अवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बड़े ज़ीरक सियासतदान है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन फैसला करेंगे। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद? नहीं, खत्मी देखो कोई चीज़ खत्मी नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। सर कोई ब्रेक
सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि जेजेवाई अपोजिशन में है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं जा रहे, ना हुकूमत ना पीटीआई। तरमीम पर वोट के हवाले से पार्टी पॉलिसी के तहत फैसला होगा। जितने भी मेहमान आए वो सब काबिल एहतराम हैं। मेरे इल्म में नहीं है तो जेयूआई पे की बात में आप भी रहे पीटीआई से भी हो रहे हैं, हुकूमत में भी हो रहे हैं, अभी फैसला हुआ ही नहीं। अभी मीटिंग शुरू होगी, एक दूसरे से फाइल करेंगे, फिर देखते हैं। रात को बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान जा रहे थे मौलाना फजल रहमान के घर, तो सिर्फ मेहमान नवाजी की गई है या किसी के साथ कोई वादा भी किया गया? मेहमान सारे मौजूद होते हैं और हमको एहतराम देना जरूरी होता है, एहतराम सबको दिया गया, सबको सलाम को। तो किसी मेहमान को खास अहमियत भी दी गई है वोटिंग के बारे में? सारे अहम थे, बाकी वोटिंग को पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक होगी। पार्टी की मेहमान होना और बात है, घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी और। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आप वोट इस वक्त हुकूमत को देते हैं, तो जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा? हम किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ ना पीटीआई की तरफ। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में इस 2024 के इलेक्शन हमारी अपनी पॉलिसी है, हम किसी के साथ जो कोई हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। मौलाना फजल रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए था। तेजी से काम नहीं किए जाते, पता नहीं कहां से जोर जबरदस्ती से ऑर्डर आ रहे हैं। ये आईनी तरमीम नहीं, सब कुछ बिलडोज किया जा रहा है। कानून में बड़ी तरमीम के लिए इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी कहती है। क्या ये जमहूरी रवैया है? जो भी हो रहा है रूल्स के खिलाफ हो रहा है। रात की तारीकी में फैसले होने हैं तो पार्लियामेंट का क्या मकसद है? मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोजर लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के जरिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं। यानी एक तो इसके नंबर पूरे नहीं है, फिर जो इनकी जितने नुमाइंदे हैं उसके बारे में हमारे टिकारी के लिए मौके पर आया कि फॉर्म 47 के उनके पास ये हक नहीं है कि ये जो है ना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब जो है ना और हम अपोजिशन में हैं, और अगर उनको अभी ड्राफ्ट दिखाया गया है वो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करेगा, हम अपना मौके उसके बाद देंगे। हुकूमत की तरफ से मुजवजा आईनी बिल के जरिए की जाने वाली मजीद तरमीम सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक ये एक्ट फौरन नाफिज हो जाएगा। ये एक्ट आइन के 26वीं तरमीम कहलाएगी। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज शामिल हैं। मुजवजा बिल में आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज शामिल है। शिक 1 के पैराग्राफ बी के तहत पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ किसी रुकन की तरफ से डाला गया वोट शुमार किया जाएगा। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत का कयाम शामिल करने की तजवीज दी गई है। आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीकाकार में भी तरमीम की तजवीज दी गई है। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को सिफारिश करेगी। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। ताहम विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वजीर आजम की तजवीज पर करेंगे, जबकि विफाकी आईनी अदालत की पहले जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जजेस के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज है। क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा तादाद मौजूद है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 जबकि कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 59 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर JUI के 8 अराकीन हुकूमत की हिमायत करते हैं तो हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने के लिए कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में मजीद 5 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में इस वक्त 313 अराकीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन
अराकीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों का ताहाल फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 69 और MQM के 22 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग क़ाब 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 93 अराकीन हैं। तहरीक इंसाफ 80, जमीयत उलमा इस्लाम 8, आजाद अरकान की तादाद 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP बेंगल का एक रुकन है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, तहरीक इंसाफ 17, BAP 4, MQM और ANP के 3 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग क़ाब और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। आजाद अराकीन की तादाद 5 है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में मजीद तौसी कर दी गई। सेनेट से अपोजिशन लीडर समेत 13 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में PP से सेनेटर शेरी रहमान और नून लीग के इरफान सिद्दीकी को शामिल किया गया है। अली जफर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मंजूर अहमद, JJY से मौलाना अताउर रहमान कमेटी का हिस्सा होंगे। ANP से एमल वली, MQM से फैसल सब्जवारी, BNP से मोहम्मद कासिम, MWM से सेनेटर राजा नासिर अब्बास, जबकि नेशनल पार्टी से जान मोहम्मद और काफ लीग से कामिल अली आगा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हामिद खान शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ फराहम कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी की मंजूरी दी गई है। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 15 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल फी लीटर 12 रुपए 12 पैसे सस्ता करने की मंजूरी दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत की गई। इसाक डार ने कहा कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात अच्छी रही। एक सवाल पर इसाक डार ने कहा कि नंबर्स कब से पूरे हैं। आप गैस करेंगे खुद। सर महंगाई के लिए अवामी इशूज के लिए भी इतनी रात का 9.6% ऐसी आ गई है। 30 से कम हो गए 8 महीने में 9.6% तो आ गई है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और आगे आएगी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे। मिलते रहते हैं हम, रोज ही मिलते हैं ऑलमोस्ट, जब जरूरत आएंगे। मेरे उस्ताद ने मुझे यही पढ़ाया। आईनी तरमीमी बिल के कुछ मौज़ूआत पर एतमाद में लिया गया। इस तवक्को पर आईनी तरमीमी बिल पर सपोर्ट करेंगे ताकि हुकूमत मजबूत हो। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का बयान, कहा आईनी तरमीमी बिल को देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया है कि इस तरह की आईनी तरमीम जरूरी है। जमहूरियत तब मुस्तहकम होगी जब MQM पाकिस्तान वो आईनी तरमीमी बिल लाएगी जिसमें इख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे। हुकूमत के हलीफ हैं, हुकूमत के साथ हैं और इस तवक्को पर इस आईनी तरमीमी बिल पर भी सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत मजबूत होगी, मुल्क में इस्तेहकाम का क़याम होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे और ये मजबूत और मुस्तहकम उसी वक्त होगी जब MQM पाकिस्तान का वो आईनी तरमीम का बिल आएगा जिसमें इख्तियारात, वसाइल, फैसला करना, ये सब कुछ 130 शहरों और ज़िलों को दिया जाएगा पाकिस्तान में। आईनी तरमीम से नून लीग को खुद पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। एक तो हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं, दूसरा ये आइन कानून पर शबखून मार रहे हैं। आईनी तरमीमी के लिए लोगों को पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जरताज गुल वजीर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के अपने नुमाइंदों को नहीं पता कि तरमीम हो रही है कि नहीं हो रही। गैर आईनी तरमीम हो रही है कि मैंने पहले भी कहा था कि PMLN स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टी वाले दिन भी आके अपनी क्लास में पेश हो रहे हैं और वो मुसव्वदा जो है वो कर रहे हैं जिस मुसव्वदा को उनको खुद नहीं पता। मैं आपको ये बता दूं कि इंसान उस चीज के ऊपर बात कर सकता है, उस चीज के ऊपर कोई कमेंट पास कर सकता है अगर आपने कोई मुसव्वदा देना हो। अगर कानून साजी का उसको पता है, अगर अवाम के मफाद में हो रही है, अगर वो वाकई हकीकी वजीर आजम है तो फिर जुर्रत पैदा करें। अभी जो है पूरे 25 करोड़ आवाम से सबकी आपकी नजरें, हमारी भी नजरें, खिताब करें।
जुर्रत करे, पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो कौन सी जो है एतमाद वाला, और बताए कि आईनी तरमीम होने जा रही है। अगर तो वो अवाम से खिताब नहीं कर रहा, अगर वो इस वक्त नेशनल टीवी को बुला के आपको और अवाम को एतमाद में नहीं लेता, वो आपसे शिक बाय शिक नहीं कानून को बताता, इसका मतलब है कोई चोरी हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, तमाम आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद है। आइन की वाज़ेह तशरीह का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह ने हुकूमत की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इनकी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई है। ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत खुद अपने ही फंदे में फंसने जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है, तो फिर मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान की स्मगल शुदा सामान के खिलाफ कार्रवाइयां, 281 मिलियन से ज्यादा का सामान तहवील में ले लिया। कस्टम इंटेलिजेंस ने मजमूई तौर पर 281 मिलियन से ज्यादा का सामान तहवील में ले लिया। इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। 3.7 टन छालिया, 1.43 टन इंडियन और पान पराग समेत गाड़ी तहवील में ली गई। थाना सदर की हदूद से एक टैंकर तहवील में लिया गया। टैंकर के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स के 21 कार्टन इंपोर्टेड सिगरेट्स मौजूद थे। 4.5 टन ईरान ओरिजिन खुश्क दूध भी कब्जे में लिया गया। 1000 गंजी कोयटा से फैसलाबाद आते ट्रक से अमेरिकन ओरिजिन के 705 खुश्क दूध के बैग बरामद। 4.5 टन ईरान ओरिजिन खुश्क दूध भी कब्जे में लिया गया। 1.75 चाइना नमक, 44 काजू कार्टन, 5.15 टन खशखास समेत गाड़ी कब्जे में ले ली। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। यूरोपीय यूनियन के शहरियों को बरतानिया के सफर के लिए पेशगी इजाजतनामा हासिल करना पड़ेगा। वीजा की तर्ज का फॉर्म और फीस की अदायगी यूरोपीय शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।